Good morning, students. Today we will study the last chapter of your SST book. The chapter 6 India wins freedom. भारत को स्वतंत्रता की जीत. So before we start the text, let us try to solve the questions given in the Get Set Go. So answer the following. The first question: in which year did India become independent? So 15 August 1947. Answer is 15 August 1947. Second question is: who was the first Prime Minister of India? Who was the first Prime Minister of India? The answer is Pandit Jawaharlal Nehru. Pandit Jawaharlal Nehru. And third question is: who was the first President of India? Who was the first President of India? The answer is Dr. Rajendra Prasad. Dr. Rajendra Prasad. The fourth question is: who composed the national anthem of India? Who composed the national anthem of India? The answer is Rabindranath Tagore. Rabindranath Tagore. And the last question is: what is our national song? What is our national song? The answer is Vande Mataram. Answer is Vande Mataram. So students, learn these questions. These questions are also very important, and it is very necessary to know and keep in your mind. Okay, these are simple questions which can be asked people by you. Okay, so you must know it by heart. And who is the present Prime Minister of India? The present Prime Minister of India is Narendra Modi. Okay, so remember all these things. Okay, so now let us come to start reading the text. The Indian National Congress achieved limited success during its early year. The Indian National Congress achieved limited success during its early year. The leaders of the Congress at this time were known as the moderate. तो जब इंडियन नेशनल कांग्रेस 1885 में हुआ, उस समय जो नेशनल कांग्रेस के लीडर्स थे उनके द्वारा भारत की आज़ादी का बहुत कम सफलता उन्हें मिली थी, बहुत कम सफलता मिली थी। और उस समय जो लीडर्स थे उन्हें मॉडरेट्स कहा जाता है। मॉडरेट्स मीन्स नरम दल, उन्हें नरम दल कहा जाता है। वे नरम दल के लीडर्स थे और उनमें कौन कौन थे? दादा भाई नौरोजी एंड गोपाल कृष्ण गोखले वेर मॉडरेट लीडर्स। तो ये लोग मॉडरेट लीडर्स थे, नरम दल के लीडर्स थे। ओके, नरम दल से ऐसे ही नाम से नरम है, तो उन लोगों को अंग्रेज़ों के सामने नम्रता से प्रस्तुत होते थे, पेश होते थे। अंग्रेज़ों को धीरे से, नम्रता से उन्हें आज़ादी के लिए मनाने की कोशिश, भारत की आज़ादी दिलाने के लिए मनाने की कोशिश करते थे, इसलिए वे मॉडरेट्स कहलाते हैं। ओके,
They believed in pleading with the British government to bring about reforms. So देखो they believed in pleading, तो ये मॉडरेट दल के जो नेता थे, नरम दल के जो नेता थे, वे अंग्रेज़ों से विनम्र सविनय भाव से उन्हें रिक्वेस्ट करते थे, अंग्रेज़ों से रिक्वेस्ट करते थे, अनुनय विनय करते थे हमारे भारत देश की आज़ादी के लिए, रिफॉर्म के लिए, हमारे भारत देश की सुधार के लिए. ओके, ग्रेजुअली देयर वेर grew another group within the Congress. They were called the radical. और जब इन मॉडरेट दल के नेताओं के द्वारा भारत की आज़ादी के बारे में जब ज़्यादा सक्सेस या सफलता नहीं मिली, तो उन्हीं के बीच में एक नया दल का गठन हो गया और उस नया दल का नाम है रेडिकल. रेडिकल है, इनको गरम दल कहते हैं. ओके, दे वांटेड टू ओपोज द ब्रिटिश स्ट्रोंगली. और ये गरम दल जो लोग थे इनमें, वे अंग्रेज़ों के विरोध में थे और उन्हें स्ट्रोंगली मजबूती के साथ उन्हें मतलब फोर्स किया जाता था कि हमारे देश की आज़ादी के लिए. ओके, दे वेर इन फेवर ऑफ स्ट्राइक एंड बॉयकॉट्स. और ये गरम दल के जो नेता थे, ये हमारे देश की आज़ादी के लिए यहाँ तक कि वे हड़ताल, चक्का जाम और बहिष्कार जैसे रैलियाँ करने लगे. ओके, और इनमें जो मुख्य लीडर्स थे, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, ये लोग गरम दल के, रेडिकल दल के मुख्य प्रमुख नेता लोग थे. ओके, और इन तीनों को हम शॉर्टकट में लाल बाल पाल कहते हैं. तो स्टूडेंट्स, you must also learn this name. I must ask anytime you who are called the Lal Bal Pal. So you must answer it. Okay. तो ये तीनों were the three popular leaders of the radical group. और ये तीनों radical group के प्रसिद्ध फेमस लीडर्स थे. ओके, और यहाँ देखो बाल गंगाधर तिलक एक नारा कहते हैं, स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट, है ना. तो बाल गंगाधर तिलक का नारा है, ठीक है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा. तो ये उनका नारा था. ओके, तो अब देखते हैं पार्टीशन ऑफ बंगाल. पार्टीशन ऑफ बंगाल, अंग्रेज़ों ने बंगाल को किस मकसद से पार्टीशन किए, बांटे. पार्टीशन मतलब बांटना, टुकड़ा करना. ओके, तो देखते हैं पार्टीशन ऑफ बंगाल. इन 1905 द ब्रिटिश डिसाइडेड टू पार्टीशन बंगाल. सो 1905 में अंग्रेज़ों ने बंगाल को, पश्चिम बंगाल को दो भाग में बांटने का डिसीजन लिए. वन पार्ट वाज टू हैव अ largely Hindu population while the other part was to have a Muslim majority, है ना. तो अंग्रेज लोग बंगाल को दो भाग में बांट दिए और एक हिस्से में केवल हिंदू भाई लोग थे और दूसरे हिस्से में केवल मुस्लिम भाई लोग थे. ठीक है. फिर द पार्टीशन वॉज एन अटेम्प्ट टू प्रिवेंट हिंदू एंड मुस्लिम्स फ्रॉम यूनाइटिंग अगेंस्ट द ब्रिटिश. सो अंग्रेज़ों का
ये करने का उनके पीछे मकसद था। भारतीयों का जो दल था इंडियन नेशनल कांग्रेस, ये अब धीरे धीरे मजबूत होते जा रहा था। उससे अंग्रेज लोग थोड़ा डर में आ गए थे। इसके वजह से अंग्रेज लोग अलग अलग कदम उठाते हैं, है ना, अलग अलग कदम उठाते हैं कि उन अंग्रेज़ों की एकता को, यूनिटी को तोड़ने के लिए। तो उसी के मकसद से इन्होंने बंगाल को दो भाग में बांटा और एक भाग में केवल हिंदू थे और एक भाग में केवल मुस्लिम थे, ताकि जितने भी हिंदू मुस्लिम भाई लोग थे वे एक साथ एकजुट में ना आ सके, है ना, वो लोग अपना एकता, अपना यूनिटी ना बना सके। इस मकसद से बंगाल को दो भाग में बांट दिए। पीपल स्ट्रांगली अपोज्ड द पार्टीशन, और हमारे भारतीय लोग इस पार्टीशन, इस विभाजन को बहुत ज़्यादा विरोध किए। द कांग्रेस लॉन्च द स्वदेशी एंड द बॉयकॉट मूवमेंट, और इंडियन नेशनल कांग्रेस एक आंदोलन भी शुरू कर दिया, स्वदेशी, अपना देश, एंड द बॉयकॉट मूवमेंट, और बहिष्कार आंदोलन। स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन जैसे आंदोलन को कांग्रेस ने शुरू भी कर दिया। एज अ रिजल्ट द ब्रिटिश वेयर फोर्स्ड टू रीयूनाइट बंगाल इन 1911। तब जब इंडियन नेशनल कांग्रेस ने ये दो आंदोलन जब शुरू किया तो अंग्रेज लोग मजबूर हो गए बंगाल को फिर से एक बनाने के लिए, रीयूनाइट करने के लिए, है ना। तो दो भाग में बांटे थे, उसको फिर से एक कर दिए 1911 में, ठीक है। फिर आगे देखते हैं स्वदेशी एंड बॉयकॉट। स्वदेशी एंड बॉयकॉट, स्वदेशी मीन्स हमारा अपना देश, वंस ओन कंट्री, है ना। बॉयकॉट मीन्स बहिष्कार होता है, ठीक है। तो स्वदेशी मीन्स ऑफ वंस ओन कंट्री, अपना हमारा अपना देश, ठीक है। द मूवमेंट एम टू पॉपुलराइज द यूज ऑफ गुड्स मेड इन इंडिया, और ये आंदोलन से ये ख्याति, ये संदेश देश के लोगों को देना शुरू किए कि उनका मुख्य मकसद या मुख्य लक्ष्य ये था हमारे देश के लोगों के लिए कि हमारे देश में जो चीज़ें बनती हैं उसको ज़्यादा प्राथमिकता दिया जाए, और अंग्रेज़ों के जितने भी सामान होते हैं, जितने भी चीज़ें हम उनके द्वारा बनाए गए चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं उसको छोड़ देना। ये था स्वदेशी और बॉयकॉट, ओके। द पीपल वेर आस्क्ड टू बॉयकॉट ऑल फॉरेन गुड्स, और भारतीयों को ये कहा गया कि जितने भी अंग्रेज़ों का सामान है जो हम लोग अपने घरों में यूज़ करते हैं वो सारी चीज़ों को छोड़ देना है, हटा देना है। दे मेड ह्यूज बोनफायर ऑफ फॉरेन मेड गुड्स। बोनफायर मीन्स अग्निदाह, है ना। तो हमारे भारतीय लोग बड़े बड़े अग्निदाह बनाए जिसमें अंग्रेज़ों के जितने भी हमारे घरेलू यूज के सामान थे उनको ले जा करके उसमें जला दिए, है ना, उन चीज़ों का अग्निदाह बना दिए, ठीक है। अ लार्ज नंबर ऑफ वीमेन एंड स्टूडेंट्स जॉइंड द मूवमेंट, और स्वदेशी एंड बॉयकॉट आंदोलन में बहुत सारे महिलाएं और स्टूडेंट्स, विद्यार्थी भी इसमें शामिल हुए। द गवर्नमेंट ट्राई टू सप्रेस द मूवमेंट, और फिर अंग्रेज़ों का सरकार इस आंदोलन को दबाने की कोशिश किए, इसको मतलब रोकने की कोशिश किए, ठीक। फिर आगे देखते हैं द रिवोल्यूशनरीज। रिवोल्यूशनरीज का मतलब होता है क्रांतिकारी, ओके, क्रांतिकारी, जो कि मतलब एकदम नयापन देश में लाया और लड़ाई झगड़ा करके जो
सफलता प्राप्त करता है उनको कहते हैं क्रांतिकारी, है ना। फिर सम यंग पीपल इन बंगाल, पंजाब एंड महाराष्ट्र फेल्ट दैट द मॉडरेट्स एंड द रेडिकल्स हैड नॉट अचीव्ड इनफ। तो इसी दौरान ऐसे कांग्रेस के बीच में दो दल थे, ठीक ना, रेडिकल और मॉडरेट, और इन दो दलों के द्वारा जब पर्याप्त सफलता, आज़ादी की पर्याप्त सफलता देशवासियों को नहीं मिलने लगी, तब कुछ स्टेट जैसे बंगाल, पंजाब और महाराष्ट्र के कुछ यंग नौजवान लोगों को ये महसूस हुआ कि हमारे इन दलों के नेताओं के द्वारा हमारे देश की आज़ादी प्राप्त नहीं हो रही है। तो उस स्थिति में ये यंग नौजवान लोग सामने आए एक रिवॉल्यूशनरीज के तौर पे, है ना। फिर these revolutionaries believed that the British could be driven out of India only through force, और इनका मानना है कि ये अंग्रेज लोग ऐसे नम्र स्वभाव, विनम्र भाव से नहीं मानने वाले हैं, रिक्वेस्ट से नहीं मानने वाले हैं, इनको जबरन फोर्स करके, ढकेल करके देश से भगाना होगा, तभी ये लोग भागेंगे और हमें आज़ादी प्राप्त होगी। तो ये इन रिवॉल्यूशनरीज लोगों का मानना था। ओके, देन दे वेर विलिंग टू सैक्रिफाइस देयर लाइफ्स फॉर द कंट्री, और यहाँ तक कि ये नौजवान लोग अपने जान भी अपने देश के लिए देने को तैयार थे, अपना जान भी न्यौछावर करने के लिए तैयार थे, है ना। अजीत सिंह, अरबिंदो घोष, खुदीराम बोस और वीर सावरकर वेर द अर्ली रिवॉल्यूशनरीज। तो इनमें मुख्य रिवॉल्यूशनरीज कौन थे, क्रांतिकारी कौन थे? अजीत सिंह, अरबिंदो घोष, खुदीराम बोस और वीर सावरकर। तो इन नौजवानों का नाम आप लोगों को जानना होगा। ओके, you may be asked any time who were the revolutionaries, name few of them. Okay, so you must know this young revolutionaries name. Okay, then ये लोग थे। फिर some of them were later arrested and hanged, पर ये हमारे देश की आज़ादी लड़ते लड़ते कुछ लोगों को अंग्रेज लोग ने मार दिए, गोली मार दिए, और कुछ लोगों को फांसी लगा दिया गया और कुछ लोगों को जेल में डाल दिया गया। तो इस तरह से हमारे देश की आज़ादी धीरे धीरे मतलब पाने की स्थिति में आगे बढ़ती गई। ओके, लेकिन इसके दौरान कई लोगों का जान भी गंवाना पड़ा। ठीक है, देन अगला है गांधी लीड्स द नेशन। तो इसके बाद में गांधी लीड्स द नेशन। ओके, तो 1891 में है ना, सॉरी 1915 में गांधी जी साउथ अफ्रीका से भारत वापस आए। ओके, साउथ अफ्रीका से भारत वापस आए। ठीक है, अपना लॉ का प्रैक्टिस करके। ठीक है, इन 1915 मोहनदास करमचंद गांधी रिटर्न टू इंडिया फ्रॉम साउथ अफ्रीका। ठीक, 1915 में मोहनदास करमचंद गांधी साउथ अफ्रीका से भारत वापस आए। इन साउथ अफ्रीका he had fought against the racist policies of the white rule, और साउथ अफ्रीका में गांधी जी गोरे और काले के भेदभाव को लेकर के वहाँ पे लड़ाई लड़ी, क्योंकि साउथ अफ्रीका में गोरों के बीच में कालों का
सांवले लोगों का कोई जगह नहीं था, उन्हें किसी तरह का फ्रीडम नहीं थी और उन्हें कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा भी किसी तरह का अधिकार नहीं प्राप्त था। इस में भी गांधी जी ने अपना लड़ाई लड़ी थी। हिज मेथड ऑफ फाइटिंग, और उनके लड़ने का तरीका, नोन एज सत्याग्रह। सत्याग्रह मीन्स सत्य के मार्ग पे, उनके लड़ने का तरीका था सत्य के मार्ग पे, सत्य के मार्ग पे चल करके स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ना है। तो ये उनका तरीका था। वॉज बेस्ड ऑन 2 प्रिंसिपल्स, और ये लड़ाई 2 सिद्धांत पे आधारित था। वो है ट्रूथ, सत्य, और अहिंसा, नॉन वायलेंस, अहिंसा, बिना लड़ाई का, सत्य और बिना लड़ाई का। ये 2 चीज़ पे उनके आज़ादी की लड़ाई मतलब आधार था। ओके, आफ्टर रिटर्निंग टू इंडिया, गांधी जी ट्रेवल्ड अक्रॉस द कंट्री। ही वॉज शॉक्ड बाय द पॉवर्टी। तो जब अफ्रीका से वापस आने के बाद गांधी जी देश में पूरे तरफ घूमते हैं। ओके, और लोगों का दयनीय स्थिति को देखते हैं, समझते हैं कि हमारे देश में बहुत ही गरीबी है, लोग बहुत लाचार हैं, है ना। ये सारे चीज़ों को देखते हैं। ही डिसाइडेड टू फाइट नॉट ओनली द ब्रिटिश बट ऑल्सो द प्रिवेलिंग सोशल एंड रिलीजियस प्रैक्टिसेस। और जब वे वापस आए उस समय भारत में अंग्रेज़ों के द्वारा बहुत सारी बुराइयां थी, सामाजिक बुराइयां थी। गरीबी तो थी ही, साथ साथ में समाज में, कास्ट में बहुत सारी बुराइयां थी, है ना। जैसे प्रिवेलिंग सोशल एंड रिलीजियस प्रैक्टिसेस, प्रिवेलिंग मतलब समाज में जो रीति रिवाज प्रचलित थी और धार्मिक प्रैक्टिसेस थी, जैसे कि कास्ट सिस्टम, है ना, कास्ट सिस्टम, जातिवाद और सती और डौरी, ये सब जो मतलब समाज की बुराइयां थी, है ना, समाज की बुराइयां थी, ठीक है। और चाइल्ड मैरिज, ये सारे चीज़ समाज की बुराइयां थी। ही आस्क्ड पीपल नॉट टू ओबे द अनजस्ट लॉज ऑफ द गवर्नमेंट। और गांधी जी हमारे भारत के लोगों से ये अनुनय करने लगे कि जो अंग्रेज लोग हमारे ऊपर जो अन्याय का नियम लगा रहे हैं उसको हमें नहीं मानना है। नहीं मानने के लिए गांधी जी देशवासियों को अनुनय विनय करने लगे। ओके, फिर आगे देखते हैं जलियांवाला बाग मसाकर। तो जलियांवाला बाग मसाकर, जलियांवाला बाग हत्याकांड कहते हैं इसको, है ना, जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो स्टूडेंट्स, ये जितने भी डेट्स हैं, है ना, इवेंट्स हैं, घटनाएं हैं, इनका डेट्स और ईयर्स आप लोगों को याद करना होगा, ठीक है। तो आप लोग इन सारे डेट्स और जो मूवमेंट्स हैं, मूवमेंट्स के डेट है, उन सबों को याद करना है, ठीक है। तो जलियांवाला बाग मसाकर, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? ऑन 13 अप्रैल 1919 में। ओके, पब्लिक मीटिंग वॉज हेल्ड एट जलियांवाला बाग इन अमृतसर। और अमृतसर के एक के बाग में, बगीचा में, मतलब गार्डन में एक पब्लिक सार्वजनिक मीटिंग रखा गया था। ओके, जनरल डायल केम हियर एंड ऑर्डर हिज सोल्जर्स टू फायर एट द क्राउड। और अंग्रेजों का जो जनरल डायर थे, है ना, और ये जनरल डायर अपने सैनिकों को आदेश दे दिए,
है ना, आदेश दे दिए कि पब्लिक पे फायर करो, तो वो सोल्जर्स ये पब्लिक पे फायरिंग करने लगे। ठीक है, hundreds of people were killed and thousands were injured। और इस मसाकार, इस हत्याकांड में हजारों लोग, हजारों भारतीय मारे गए और हजारों लोग मतलब घायल हो गए, है ना। द कंट्री वॉज शॉक्ड बाय दिस इंसिडेंट। और पूरा भारत देश इस घटना से सदमा में आ गया, शॉक्ड हो गया, चौंक गया। ओके, ऑल नेशनल लीडर्स प्रोटेस्टेड स्ट्रांगली अगेंस्ट दिस क्रूअल एक्ट। और देश के जितने भी पॉलिटिक्स लीडर्स थे वे सभी इस घटना के विरोध में उतर गए, है ना। सो स्टूडेंट्स, टुडे only till here, and next we will see in the next video। okay, so before we wind up the video, let us see here some graphs is given, okay, about the Mahatma Gandhi। okay, so students, Mahatma Gandhi's from child birth to his death, the dates are being given here, okay, on your book। dates, years have been given, and all the events which he conducted, which he launched, all the events are being given। so you must learn all the events and movements and years of these events। okay, so in 2nd October 1869, Gandhi ji born in Porbandar in Gujarat to Karamchand Gandhi and Putli Bai। 2nd October 1869 में गांधी जी करमचंद गांधी और पुतली बाई से गुजरात के पोरबंदर में जन्मे थे। ओके, उसके बाद गांधी जी का विवाह 1883 में कस्तूरबा माखनजी कबाड़िया के साथ हुआ। ओके, कस्तूरबा माखनजी कबाड़िया के साथ 1883 में उनका विवाह हुआ। फिर 1888 में गांधी जी लंदन लॉ की पढ़ाई के लिए गए। फिर 1891 में गांधी जी रिटर्न टू इंडिया, स्टार्टेड अ लॉ प्रैक्टिस। 1891 में गांधी जी लंदन से अपना लॉ का स्टडी करके वापस आए और भारत में प्रैक्टिस किए। ओके, देन 1893 में गांधी जी साउथ अफ्रीका के लिए गए और स्पेंड द 21 ईयर्स देयर, और 21 ईयर्स गांधी जी साउथ अफ्रीका में रहे। ओके, फिर 1915 में गांधी जी साउथ अफ्रीका से भारत वापस आए, है ना। तो ये उनका मतलब जन्म से लेकर के मृत्यु तक उनका जर्नी है। ओके, so you must know all the date and the year। in 1920 में उन्होंने असहयोग आंदोलन, अंग्रेज़ों के विरोध में असहयोग आंदोलन स्टार्ट किया। ठीक है, फिर 1922 में withdrew the movement sent to prison, और 1922 में जो चौरा चौरी का हत्याकांड हुआ था उस समय ये स्वदेशी आंदोलन को वापस ले लिया। ओके, देन 1930 लेट द सॉल्ट मार्च विच स्टार्टेड द सिविल डिसोबीडियन, है ना। तो 1930 में नमक कानून का आंदोलन शुरू किया, अवज्ञा आंदोलन का शुरू किया। ओके,
1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किए। फिर 1946 एंड 1947 में ट्रैवल टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया, और ये 1947 और 46 और 47 में उन्होंने भारत के विभिन्न क्षेत्रों में इन्होंने ट्रैवल किया और लोगों के बारे में जाना, ठीक है, और शांति का मैसेज लोगों के बीच में बांटा। फिर 30 जनवरी 1948 में नाथूराम गोडसे के द्वारा गोली मार दिया गया और 1948 में इनका मृत्यु हो गया। सो स्टूडेंट्स, दिस आर द जर्नी ऑफ Mahatma Gandhi from birth to death. So students, today we will wind up the lesson. So after listening to my video, you read the text and go through it properly so that you may understand it more clearly and more better. Thank you.